صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی محفل میں آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا مولا حسین علی جدہ علیہ السلام کے نائب بنا کر جن کو مولا حسین نے بھیجا تھا، مولا حسین نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، کوفہ والوں نے پہلے بیعت کی، پہلے آپ کی خاطر و مدارت کی، اور پھر جو ہے بڑی بڑی رشوتیں لے کر، بڑی بڑی رشوتوں کے چکر میں آ کر، دنیا کے مال و منال کے چکر میں آ کر انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیسی غداری کی۔ قیامت تک کوفہ والوں کی غداری یاد رکھی جائے گی۔ کل آپ نے یہاں تک سنا تھا کہ حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کوفہ کے دارالعمارت پر لے جا کر آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے جسم اطہر کو زمین پر پھینک کر آپ کے جسم کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہانی کی شہادت بھی ہو گئی، جن کے گھر امام مسلم کا قیام تھا، امام مسلم جن کے گھر مقیم تھے جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ دونوں لاشوں کو انہوں نے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا، اور کوفہ کے بازاروں میں پھرا کر ان ظالموں نے جو ہے اس بات کو کہنا شروع کیا، جو حسین کی تائید کرے گا، جو حسین کی حمایت کرے گا، اس کا یہی انجام کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ حسین کی تائید کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر سر جو ہے کل حسین کی تائید میں سر چھینے جا رہے تھے، تو آج حسین کی تائید کرنے والوں کی آبرو بھی چھینی جا سکتی ہے، ان کے ایمان پر سوالیہ نشان بھی کوئی کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کل محبان اہل بیت کو نہ سر کی پرواہ تھی اور نہ آج محبان اہل بیت کو اپنی آبرو کی پرواہ ہے، اس لیے کہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت، میرے وقار سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انہوں نے لاشوں کو لٹکایا اور لوگوں کو کہا عبرت حاصل کرو، اللہ اکبر۔ ابھی جو ہے تلواروں سے خون کی دھاریں ٹپکنا بند نہ ہوئی تھی، ابھی خون کے قطرات جلاد کی تلوار سے ٹپکنا بند نہ ہوئے تھے، ابھی قاتل کے آستین پر خون کے دھبے دھلے بھی نہ گئے تھے، ابھی قاتل کے آستین پر جو ہے خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں ابن زیاد بدنہاد کی منحوس آواز گونجتی ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، جلدی سے جس کے پاس ہے وہ لا کر کے ہمارے پاس جمع کرا دے، ورنہ ہم اس کا بھی یہی انجام کریں گے۔ حسن اتفاق اس وقت جو ہے وہ امام مسلم کے 2 معصوم بچے حضرت قاضی شریح کے پاس موجود تھے۔ قاضی شریح نے جو ہے اپنے گھر کے اندر محمد و ابراہیم کو چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کا یہ اعلان قاضی شریح کے سامنے آیا، حضرت ہانی کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا، امام مسلم کی شہادت سے باخبر تھے اور جانتے تھے کہ کتنا بدبخت ہے ابن زیاد، کہ اگر اس کو پتا چلا تو وہ میرا انجام کیا کرے گا۔ حضرت قاضی شریح نے سوچا اگر دونوں شہزادوں کو، نبی کے شہزادوں کو میں لے جا کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتا ہوں تو میری جان تو بچ جائے گی، لیکن ان بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کے انجام سے کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ شہزادے جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، وہ شہزادے جن پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ شہزادے جن پر درود کی تلقین مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی، وہ شہزادے جن کی محبت جان ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے، معیار ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، کوئی کیسے کسی کے حوالے کر سکتا تھا؟ کوئی بدبخت بے ایمان تو یہ کر سکتا تھا۔ حضرت قاضی شریح نے سوچا کہ کیا کیا جائے، انہوں نے رات گزرنے کا انتظام کیا۔ اللہ اکبر۔ کوفہ کی کم بخت آبادی جو ہے وہ شہادت امام مسلم کے بعد
साथ जो है अपने बिस्तर पे ख्वाब खरगोश के अंदर सो रही थी। अल्लाह अकबर, पता नहीं अल्लाह अल्लाह उनको नींद कैसे आ गई थी आले नबी का खून बहाने के बाद। मैं तो ये कहता हूँ शायद मेरी एक छोटी सी सोच है, मेरे आका के दीवानों, जिस दिन से उन्होंने मुस्लिम को शहीद किया है उस दिन से लेकर आज तक शायद कूफा वाले कभी चैन की नींद न सो सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आले मोहम्मद का खून कभी किसी को चैन से सोने नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रात तारीख होती जा रही है, रात का सन्नाटा होता जा रहा है। ऐसे आलम में काजी शुरे दोनों शहजादों को अपने करीब बुलाते हैं और सोचते हैं कि करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। मोहम्मद इब्राहिम सामने मौजूद है। काजी शुरे मासूम चेहरों को देखते हैं और उसके बाद सर पे हाथ फेरते हैं और रोते जाते हैं। आवाज बुलंद होती जाती है। दोनों शहजादे इस हालत में काजी शुरे को देखते हैं तो कहने लगे, काजी साहब, आप हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप हमारे साथ जो अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, ये तरीका हमदर्दी तो हमारे खानदान में यतीमों के साथ किया जाता है। क्या हम लोग यतीम हो गए हैं जो हमारे साथ आप ये सलूक कर रहे हैं? काजी शुरे ने नन्हे मासूम बच्चों की जबान से जैसे ये जुमले सुने, ऐसा लगा कि तीर की तरह वो जुमले जो है काजी शुरे के दिल के अंदर पेवस्त हो गए। हजरत काजी शुरे ने जब सुना कि हमारे खानदान में ये हमदर्दियां यतीमों के साथ की जाती है, जो हमदर्दी आप हमारे साथ कर रहे हैं, काजी शुरे की रोते रोते हिचकियां बन गई और कहने लगे, सर पे हाथ फेरते हुए, सीने से चिमटाते हुए, हाँ हाँ शहजादो, तुम्हारी सोच गलत नहीं है। इस मुसाफिरत में, इस दश्ते गुर्बत में यहाँ आप लोग यतीम हो गए हैं। बच्चों ने जैसे ही सुना, एक दूसरे को हैरत से देखकर छोटा भाई बड़े भाई से लिपट गया और रोने लगे। अल्लाह अकबर। काजी शुरे कहते हैं, शहजादो, अब रोने का वक्त नहीं है, एक काम करो, अभी तो सिर्फ तुम्हारे वालिद की शहादत नहीं हुई, बल्कि इब्ने जियाद बदनिहात बानी फसाद ने जो है ये ऐलान कर दिया है कि तुम्हें भी वो शहीद कर देगा और वो तुम्हारी तलाश के अंदर उसने जो है वो अपने फौजियों को लगा दिया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इससे पहले कि उसकी फौज मजीद जो है वो हरकत में आ जाए, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। देखो, यहाँ से एक काफिला मदीनतुर रसूल जाने वाला है, शायद उसके निकलने का वक्त आ गया या वो निकल चुका होगा। मेरा बेटा आप दोनों को उस रास्ते पर लगा देगा। एक काम करना, आप उस रास्ते पर लग जाना और मदीनतुर रसूल जाना, और जब अपने नाना के जवाब में पहुंचना तो बसत एहतराम मेरा भी सलाम अर्ज करना। दोनों नन्हे नन्हे शहजादे, मुसलमानों जरा सोचो, 6 साल की और 8 साल की उम्र क्या होती है। हम 6 और 8 साल के बच्चों को अपने घर से अकेला स्कूल भी नहीं जाने देते। वाय रे मजलूमी, हाय रे वक्त के हालात और अल्लाह अल्लाह लोगों की सितम जरीफियां, दुनिया के हवस परस्तों के आगे इंसान कितना मजबूर हो जाता है। जब इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ जाती है तो उस वक्त वो उसको कुछ सुझाई नहीं देता, वो दुनिया का कुत्ता बन जाता है और फिर वो किस कदर खूंखार हो जाता है, वो किस कदर सख्त दिल हो जाता है, उसके सामने फिर कुछ नहीं रहता। मुझे बताओ, वो दौर कितना दौरे रिसालत से करीब था, किसको पता नहीं था कि आले नबी की मोहब्बत फर्ज की गई है, आले नबी की मोहब्बत ऐने ईमान है, आले नबी की मोहब्बत ऐने इस्लाम है। मुझे बताओ किसको पता नहीं था। लेकिन बाहर दुनिया की मोहब्बत, जिनके दिल सख्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको कुछ सुझाई नहीं देता, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर क्या हुआ? वो हजरत काजी शुरे का बेटा रात के आखिरी पहर में दोनों शहजादों को लेकर के गया और फिर उंगली का इशारा करके कहा, ये देखो ये रास्ता मदीनतुर रसूल की तरफ जाता है, मदीने तैयबा की तरफ जाता है। दोनों शहजादे चलते रहे, सिपाहियों का खौफ था और चलते चलते अल्लाह अल्लाह पैरों में आबले पड़ गए, कांटा चुभता तो वहीं पर बैठ जाते। अल्लाह अकबर। कभी एक दौर वो था कि नाना के मजार तक भी जाते थे तो बाप की उंगली थाम कर
जाते थे। और आज एक वक्त ऐसा है कि ला कूफा से मदीने मुनव्वरा का सफर अकेले तय करना है, पैदल तय करना है, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, आले नबी के साथ क्या सलूक किया गया, दीन के मुहाफिजों के साथ क्या अंदाज किया गया। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में दोनों शहजादे चल रहे हैं और चलते चलते जब सुबह का सवेरा नमूदार होने के करीब होता है तो इब्ने जियाद के जो सिपाही थे, जो ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, दोनों शहजादों का सामना हो गया। चेहरे की नूरानियत देख के पता हुआ कि ये कोई अजनबी और ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये नबी के शहजादे हैं, इमाम मुस्लिम के शहजादे हैं। उन जालिमों ने पूछा कौन हो तुम, तो ये सोच करके सही सही बता दिया कि यतीमों के साथ तो सख्त से सख्त दिल इंसान भी अच्छा सलूक करता है, हम तो मुस्लिम इब्ने अकील के यतीम हैं। इसलिए उन्होंने सच सच कह दिया कि देखो हम मुस्लिम बिन अकील के जो है वो यतीम हैं, फातिमा के पोते हैं, नबी के नवासे हैं। बस जैसे ही उन्हें पता चला, दोनों शहजादों की जुल्फे खींची और पकड़ करके जो है कहा जाके हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक रहे हैं और तुम जो है वो ये मजे से भागने की कोशिश कर रहे हो। ला करके वहां पर जमा कराया। इब्ने जियाद से कहा ये हमने मुस्लिम के बच्चों को पकड़ा है, हमें इनाम दिया जाए और फिर बताओ हुक्म क्या किया जाए। इब्ने जियाद ने कहा मैं यजीद को खत लिखता हूँ, वो जो हुक्म देगा उस पर अमल होगा। तब तक के लिए इन दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया जाए। दोनों शहजादों को जेल में डाल दिया गया। कहते हैं कि जो जेल का दारोगा था वो अहले बैत का मुहिब था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया में अक्सरियत अहले बैत के मुहिब्बीन की मिलेगी। अगरचे कोई दहशतगर्दी करे, कोई जुल्म करे, कोई जो है अपनी ताकत के बल पर लोगों को अहले बैत की मोहब्बत से दूर करना चाहे, लोग जबान तो बंद कर सकते हैं लेकिन दिल पर किसी का काबू नहीं है। इंसान फूल पर तो पहरा बिठा सकता है, फूल की खुशबू पर पहरा कभी नहीं बिठाया जा सकता। अहले बैत के मुकाबिल में किस किस को लोगों ने हर दौर में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने वालों के घर के चिराग गुल हो गए हैं। अहले बैत की शमा आज भी फरोजा है और क़यामत तक के इंशाअल्लाह फरोजा रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब भी अहले बैत के मुकाबिल में किसी को खड़ा किया गया उसको धूल ही चाटनी पड़ी है। मेरे आका के दीवानों, हाँ, जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत के हक अदा किए आज भी उनके नाम के झंडे लहरा रहे हैं और क़यामत तक लहराते रहेंगे। मेरे आका के दीवानों, वो दारोगा जेल जो था उसका नाम मशकूर बताया जाता है। उसने दोनों शहजादों के आराम का इंतजाम किया और रात का इंतजार करने लगा और फिर सोचा अंजाम कुछ भी हो मैं इनकी गुलामी करके बीबी ज़हरा की खैरात जरूर हासिल करूंगा, आकाए करीम की शफाअत जरूर हासिल करूंगा। उसने ये किया, रात की तारीकी में दोनों बच्चों को निकाला, दोनों शहजादों को निकाला और निकालने के बाद अपनी अंगूठी दी और कहा देखो ये कादसिया की तरफ जाने वाला रास्ता है, जब तुम कादसिया जाओगे तो मेरा भाई, ये सगा भाई, उसको ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीने मुनव्वरा तक हिफाजत के साथ पहुंचा देगा। दोनों शहजादे कल के सफर से कलेजा मुंह को आता था, रात भर बेचैन चलते रहे। अल्लाह अकबर। और अब जब निकले सफर शुरू किया तो हाल ये था, पत्ता खड़कता तो यूं लगता कि कोई सिपाही फिर ना पकड़ ले, डर कर सहम कर बैठ जाते, कभी चलते कभी रुकते, कभी डर की वजह से एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगते। आखिर मुसलमानों जानते हो ना, छोटे बच्चों की उम्र ही क्या, छोटे बच्चों के हौसले ही क्या होते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे तो पटाखे की आवाज से भी डर कर उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे बच्चे तो ढोल जोर से बजता है तो उससे भी डर जाते हैं, बल्कि माँ बाप की चीख से डर जाते हैं। हाय हाय, उन नन्हे बच्चों की मुसाफिरत का हाल क्या होगा, उनकी मजलूमियत की कैफियत क्या होगी। वो दोनों शहजादे अल्लाह अल्लाह जो है वो चलते हैं और चलते चलते जब पैर में कल जो आबले पड़े थे अब वो फूट चुके हैं, उससे खून रसने लगा है, नाजुक और नन्हे पैरों से खून निकल रहा है, कभी कांटा चुभता है तो मजीद जख्म बढ़ जाते हैं। ऐसी कैफियत में चलते 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 फिर अल्लाह अल्लाह ये भी दुनिया ने दिखाया कि रात भर चलते हुए जब सुबह का सवेरा नमूदार होने लगा तो जहां से चले थे उसके इर्द गिर्द ही अपने आप को पाया। दोनों शहजादों ने सोचा सुबह हो रही है, चहल पहल करीब है, कहीं फिर कोई
न ले जाए। तो एक बड़े भाई ने छोटे से कहा, भाई फजर का वक्त हो रहा है, पहले नमाज अदा कर ली जाए। जब उन्होंने नमाज के लिए वुजू को पानी तलाश किया तो एक उनको नहर मिल गई, उन्होंने उसमें वुजू किया, वहां नमाज पढ़ी। नमाज की बरकत यूं नसीब हुई कि वहां पर करीब में एक बड़ा सा जो है दरख्त था और उसके अंदर एक खो बनी हुई थी, एक खो थी। दोनों शहजादे छुपकर उसमें बैठ गए और अब सोचते थे कि कोई आएगा तो कहीं हमें फिर उठाकर ले जाकर इब्ने जियाद के पास जमा न करा दे। ऐसे में दोनों शहजादे बैठे थे, एक कनीज आई, उसने जैसे ठिलिया पानी के अंदर डुबाना चाहा तो क्या देखा कि खूबसूरत चेहरे, पानी के अंदर उसका अक्स नजर आ रहा है। कनीज ने देखा पानी में अक्स है, उसने पीछे पलट कर देखा तो दरख्त की खो में दोनों शहजादे डरे सहमे बैठे हुए थे, मुस्लिम के यतीम बैठे हुए थे। कनीज ने पलट करके कहा, कौन हो तुम? अब दोनों शहजादे डर गए कि कल कहा था, सच सच कह दिया था तो हम पकड़े गए थे, जेल में डाल दिए गए थे, आज सच कहेंगे तो कहीं पकड़े न दिए जाए, पकड़ा न दिए जाए। फिर सोचा झूठ कहना हमारे खानदान की रीत नहीं, और सच कहें तो पकड़े जाते हैं, झूठ कहते हैं तो खानदान की आबरू जाती है, सच कहते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सोचो तो जिनके बच्चों की ये शान है, उनके बड़ों की शान का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के किरदार का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के कैरेक्टर का हाल क्या होगा। फिर क्या हुआ मेरे आका के दीवानों, उस नन्ही सी जानों को देखा कि जब वो कोई जवाब नहीं देते बल्कि सर झुका लेते हैं, तो उस कनीज ने कहा, बच्चों अब कुछ छुपाने की कोशिश न करो, तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि तुम किसी मामूली खानदान के नहीं, तुम फातिमा के शहजादे हो। और फिर मैं तुम्हारी कनीज हूँ, खानाजाद कनीज हूँ, मुझे अपना समझो। मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज है। बच्चों को लिपटाया और फिर अपनी मालिका के पास लाई। मालिका ने जैसे देखा, उस कनीज की मालिका ने कहा, जा, मैंने तुझे इस खुशी में आजाद कर दिया कि फातिमा के लाल तूने मेरे घर तक पहुंचाए, मेरे भाग जगे, आले नबी के कदम मेरे घर आए। अरे आले नबी के कदम क्या घर आए, गोया के नबी के कदम घर आए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह अल्लाह, बच्चों को नहलाया, कपड़े पहनाए और सर में कंघी की जुल्फें सवारी और चेहरे का जो है वो गुबार साफ किया, और उसके बाद कहा, इस घर को अपना घर समझो, हम आपके हैं, मैं आपकी कनीज हूँ, आपकी दादी की कनीज हूँ। उसके बाद बहुत सारी तसल्लियां दी, खिलाया पिलाया, बच्चे इत्मीनान के साथ एक कमरे में सो गए। अल्लाह अकबर। रात आने लगी तो रात की तारीकी के अंदर फिर खिदमत की गई। बहुत देर जब गुजर गई तो इधर उसका शौहर जो हारिस था, रात देर गए घर आया, थका मांदा आया। बीवी ने पूछा, हारिस आज इतना वक्त क्यों चला गया? उसने कहा, मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, जेल से फरार हो गए हैं, और इब्ने जियाद ने कहा कि वो जो उन्हें ढूंढ करके लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मैं उन बच्चों को ढूंढने के लिए गया था, मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं थक कर चूर हो गया हूँ। उस बीवी ने कहा कि जालिम, सोच तो सही, आले मोहम्मद के सरों की कीमत वसूल करना चाहता है। अरे दुनिया से कोई लेकर क्या जाएगा? इब्ने जियाद बदने हाथ के बहकावे में मत आ, सोच, आले नबी का की जान का सौदा न कर। बहुत सब समझाया, बीवी को कहा तू अपना राग छोड़ और चुपचाप सो जा, मेरा दिमाग न पका। और उसके बाद वो थका था, सो गया। सोने के बाद अभी दोनों शहजादे जोर जोर से रोने लगे। जैसे रोने लगे ये हारिस बेदार हुआ और उसने कहा कि बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? उसकी बीवी ने कहा, शायद पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। उस जालिम ने कहा, पड़ोस के बच्चे नहीं, हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है, जबकि हमारे घर में इस उम्र के बच्चे मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी ने कहा, शायद तेरे कान बज रहे होंगे, सो जा। उसने कहा, नहीं, मैं तो देखूंगा कहाँ है। और उसके बाद जहां से रोने की आवाज आती थी वो वहां पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमरे का हाल क्या था, कमरे की कैफियत क्या थी? कमरे का हाल ये था कि दोनों शहजादों ने रात के आखिरी पहर में ख्वाब में ये देखा था कि रसूल पाक है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, मौला अली है, इमाम मुस्लिम है, हौज़े कौसर के किनारे खड़े हैं। और रसूलुल्लाह कहते हैं, मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ा है, किसके भरोसे छोड़ा है, और मजलूमियत के लिए छोड़ा है? तो इमाम मुस्लिम कहने लगे, नाना जान, बस थोड़ी ही देर में वो भी हमारे पास
अभी आ जाएंगे। दोनों बच्चे बेदार हुए। बड़े भाई ने छोटे भाई से लिपट कर कहा कि नाना जान को ख्वाब में दिखाया गया, इसका मतलब जिंदगी कम रह गई। छोटे भाई ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम भैया मैंने भी ये ख्वाब देखा है। दोनों गले मिल करके रो रहे थे। दरवाजा तोड़ा, हारिस ने दरवाजा खोला और खोल करके कहा कौन हो तुम? गरजदार आवाज में कहा कौन हो तुम? तो बच्चे समझे थे, शहजादे समझे थे कि ये तो खिदमतकारों का घर है। कह दिया हम मुस्लिम के बच्चे हैं। उस जालिम ने सुना, जोरदार तमाचा लगाया, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थकता हूं और तुम मेरे घर में मजे लेते हो। जैसे तमाचे चेहरे पे मारना शुरू किया, बीवी पीछे से आई, पकड़ लिया। जालिम ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत करने पर रसूलुल्लाह ने शफाअत की बशारत दी है। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान लोग वो भूल गए? मेरे करीम आका फरमाते हैं 4 किस्म के लोग हैं जिनको ढूंढ कर मैं उनकी शफाअत करूंगा। एक नंबर पर वो है जो दिल और जबान से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, यानी दिल से भी मोहब्बत करे और जबान से भी मोहब्बत करे। ये नहीं कि जबान से मोहब्बत करे और दिल मोहब्बत से खाली हो, नहीं, दिल में भी मोहब्बत हो, जबान में भी मोहब्बत हो। दूसरी बात ये, जब मेरी अहले बैत मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, तो जो उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दौड़ भाग करे। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ढूंढ कर क़यामत में उनकी शफाअत करूंगा। और फरमाया तीसरा बंदा वो है कि अल्लाह अकबर, जब मेरी अहले बैत उसके पास जाए तो वो उनकी खिदमत अंजाम दे, वो उनकी खिदमत करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा, ढूंढ कर उनकी शफाअत करूंगा। इमाम अहले सुन्नत इस हदीस को लिखने के बाद इस पर तफसीरा करते हुए कहते हैं मुसलमानों दौड़ो और नबी की आल की खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर। अब मेरे जुमले सुने, वो कहते हैं कि ढूंढ के दौड़ो और आले नबी की खिदमत करो। क्यों? इसलिए कि सब क़यामत में रसूलुल्लाह को तलाश करते होंगे और अहले बैत की खिदमत और मोहब्बत करने वालों को हुजूर तलाश करके उनकी शफाअत फरमाते होंगे। अल्लाह अकबर, कितने खुशनसीब हैं हम लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक आलिम दीन नायब रसूल को अगर कोई इस्तिंजा का ढेला दे दे तो वो बंदा उसकी शफाअत करेगा। अल्लाह अल्लाह, जो आले नबी की खिदमत करेंगे उनके मर्तबे क्या होंगे? इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो मैं और मेरी अहले बैत जाएंगे और मेरी अहले बैत के पीछे वो लोग जन्नत में आएंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। सबकी बारियां बाद में लगेगी, पहले अहले बैत और उनसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का गंजीना बना लो, दिल को अहले बैत की मोहब्बत का मदीना बना लो। याद रखना, दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करोगे वो मोहब्बत का सिला फूल देकर करेगा या शुक्रिया कहकर करेगा या कोई तोहफा देकर करेगा। अहले बैत की मोहब्बत का सिला अल्लाह के हबीब खुद अता फरमाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर फरमाते जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे या खिदमत करे, मुझ पर लाजिम है कि मैं उसका सिला क़यामत के दिन में उसको अता करूं। हुजूर ने अपने करम से अपने ऊपर लाजिम किया है। हुजूर कहते मुझ पे लाजिम है मोहब्बत अहले बैत का सिला, कोई दे न दे। आमिना का लाल, हाशिम